Welcome students to our online classes. Today we are going to complete this exercise by doing a hard question of this exercise. Yes, it is hard as compared to all other question of this exercise. But if you watch my video without skipping any single second, it's it is not find a much hard. As I am sure about it, I will give you important tips and tricks and the step by step how to solve this question. Yes, I am talking about question number 6, students. The question is quite hard uh, because it consists of multiple operations. That's why I am named this question as bahubali question. So students, bahubali question हम करने जा रहे हैं. ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, जो कहता रहेगा वो करते रहेंगे. Let ABC be a right triangle in which AB equal to 6 centimeter, BC equal to 8 centimeter, angle B is equal to 90 degree. Correct. So don't be panic. Don't read full question. Just read step by step as I told you. Just read only first step. Yes, in first step he is saying that you have to make a right angle triangle ABC in which two sides are given and one angle is given. Yes, it is 90 degree at B. Correct. So you have to make a right angle triangle. So students, let's make a rough figure. You have to make a right angle triangle. As I told you, और आपको पता भी होगा, जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं तो बेस को बड़ा लेते हैं. ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को आपका इजी बना देता है. तो ये देखिए, बी सी हम 8 ले लेते हैं. ये ले लिया मैंने 8 बी सी. एनी प्रॉब्लम? आप ज़रूरी नहीं है आप यहाँ भी ले सकते हैं इसे, लेकिन ये मेरी अप्रोच है. देखिएगा, 8 सेंटीमीटर, बी 90 डिग्री, करेक्ट, ए बी 6 सेंटीमीटर. अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं 6 यहाँ लेता, 8 यहाँ लेता तो क्या प्रॉब्लम आ सकती थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो बच्चों देखिएगा जी, सबसे पहले मुझे बताना है ये ए बी. यस, बी सी, नॉट ए बी, इट इज़ बी सी. सबसे पहले मुझे बी सी बनाना है 8 सेंटीमीटर, फिर बी बनाना है 90, और उसके बाद मुझे एल्टीट्यूड बनाना है 6 सेंटीमीटर का. तो बी सी से मैं काम स्टार्ट करता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, यस, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट वर्क विद बी सी. बी सी इज 8 सेंटीमीटर guys. Let's take a distance of 8 centimeter in my compass. Where it is? This is the best way to take a distance in compass. Yes, just put the scale on the notebook and point the needle at 0 and stretch it. Yeah, here it is. I think it is right now. Yes, let's draw a line of 8 centimeter. Yes, my pencil is not sharp enough and it is beyond my rules. So first of all I have to sharp it. As you know that I am uh, I am very careful about these rules, as I told you in the starting of the chapter. Okay, no problem. My pencil is sharpened now. Yes, it is BC guys. This is B and this is C. On B I have to make an angle of 90 degree, right? You all know that how to make an angle of 90 degree. Yes. बच्चों ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा अगर आपने इसमें जल्दीबाजी करी तो. स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक भी सेकंड की वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे तो ही समझ में आएगा. अच्छा, इसमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी, जिस वो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सही से बना देगी. ये 90 डिग्री बनेगा बच्चों इधर. यस, हेयर इट इज़ 90 डिग्री गाइस, राइट.
Okay. What is AB? Length of AB is 6 centimeter. Yes, it is 8 centimeter. It is 6 centimeter. Let's measure the 6 centimeter also in my compass. Yes. Okay, students. Just put a arc and join it. My first step is completed successfully. I hope that you get it. You understand it well. Are you? Just write in the chat box. Not chat box, comment box we can say. You can comment it if you get it. Step 1. Okay? It is 90 degree. Correct? This symbol is enough. Don't write 90 degree. This symbol is enough. Okay? BC, then it would be A. Correct? I am just giving the name through black pen. Okay? Let's see what is the next. First step is complete successfully. Next is BD is a perpendicular from B on AC. BD is the perpendicular from B on AC. It means here would be a point D which is joined to the B and BD is perpendicular to AC. In short, मुझे यहाँ से एक perpendicular बनाना है जो इस लाइन को D पे कट करेगा. Right? Let's see how. So students, in class 6th, yes, practical geometry. The chapter name practical geometry in class 6th. Yes, आपने तो 9th याद नहीं, 6 कैसे याद होगी? नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर. तो 6 क्लास में हमने सीखा था कैसे बनाना होता है. देखिए, जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर बनाना होता है वहाँ रखेंगे और जिस लाइन पे बनाना होगा उस लाइन को थोड़ा पार कर देंगे. यस, बियॉन्ड दिस लाइन थोड़ा सा, जिससे आर्क लग सके अच्छे से. करेक्ट? जस्ट मेक 2 आर्क on the line such a way that no hodgepodge should be there. मिल गए 2 आर्क. अब ये 2 आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है लाइन से, उससे एक आर्क और लगाएंगे. सो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से हमने ये कर लिया है. इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे आराम से और ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एज आई टोल्ड यू, रफ वर्क शुड बी डॉटेड एंड रिक्वायर्ड वर्क शुड बी dark. So yes, BD is required work, but I am just writing, I am just doing by dotted line. Why it is so? Because BD is till now. Yes, BD is till this point. So just dark only this, students. The rules should be followed, right? D. I am just again writing a point D and it is perpendicular. That's why I am just making sign of perpendicular. Right? So second step is also completed successfully. Let's read it again. Let ABC is a right angle triangle, completed. BD is perpendicular from B on AC, done. The circle through BCD is drawn. Yes, the important task is, yes, it is circle, because although we are learning tangents, that's why circle should be mandatory. The circle through BCD is drawn. Let's see where BCD. Yes, आपको सर्कल बनाना है. आपको यहाँ से सर्कल बनाना है. BCD से सर्कल बनाना है. अब ध्यान से देखिएगा, सर्कल जब BCD से बनेगा, स्टूडेंट्स देख लेते हैं अगेन. यस, सर्कल जब BCD से बनेगा तो ऐसे बनाना है जो सर्कल पे तीनों पॉइंट लाई करे. राइट? अब क्लास 9th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी और क्लास 10th में भी चैप्टर 12 में एक क्वेश्चन में वो लगाया था मैंने. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. राइट? सेमी सर्कल में एंगल कितना? 90 डिग्री. स्टूडेंट्स क्लियर? सेमी सर्कल में अगर एंगल बनेगा 90 बनेगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये सेमी सर्कल हुआ. अगर ये 90 है तो ये सेमी सर्कल हुआ. लेट्स सी, ये सेमी सर्कल हुआ अगर ये 90 है तो. अगर ये सेमी सर्कल हुआ तो BC डायमीटर हुआ. राइट? काम आसान हो गया. BC इज डायमीटर. So students, if BC is diameter,
right? It means our work is very easy now. We can use this diameter in terms of radius and just construct a triangle, right? Now we have two options. First option is this: you have to draw perpendicular bisector. After that you will get a point center. After that you have to make a circle. The first step is this: सबसे पहले आप यहाँ पे perpendicular bisector बनाएंगे, एक पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट का यूज़ करके आप एक सर्कल बनाएंगे। एक तो ये हो गया एक आसान सा तरीका। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट आई विल गिव यू सम ट्रिक। जब आपको पता चली गया BC डायमीटर है तो रेडियस आप फाइंड नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हो बेटा। ये ट्रिक इसमें ही लगाना, बाकी क्वेश्चन में मत लगाना। तो BC कितना था भाई? 8 सेंटीमीटर था। तो आप इजीली 8 का हाफ कर दोगे आराम से, जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर बच्चे ये वाला स्टेप निकाल के वीडियो देखेंगे तो घूम जाएंगे कहाँ से आया 4। इसलिए बता रहा हूँ एक एक स्टेप आपको इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, मेरे मुंह से निकला गया एक एक अल्फाज इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने 4 ले लिया ट्रिक से अपनी, राइट। 4 सेंटीमीटर का मैंने लिया ये, और इसमें मैं इसे भी बना देता हूँ यहाँ पे। यस, ये पूरी 8 है तो ये हो गया मिड पॉइंट 4, राइट। यस, ये इस पे आ गया। आपको सर्कल बना देना है इससे, ठीक। आ रहा है बात समझ? बहुत ही आसान है सर्कल बनाना। ये ऑटोमेटिक तीनों पॉइंट पाएगा अगर आपका सही है तो, बिकॉज थ्योरम है वो, ऑलरेडी प्रूव है, उसे किसी और प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये सर्कल बन गया बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपका आसान कर दिया, ये हार्ड था अभी तक, लेकिन अब मैंने आसान कर दिया क्योंकि मैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बच गया। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहाँ बनाता तो यहाँ पे आर्क हो जाते बहुत सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वीडियो के लास्ट में, बने रहिए लास्ट तक। तो ये आ गया आपका, राइट। यस, ये पॉइंट जो है ना आपका इस पे आएगा, ये इस पे ही है, आपको वीडियो में लग रहा होगा ये पॉइंट इसी पे ही है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड येट। द नेक्स्ट पार्ट ही इज सेइंग ऑल्दो वी आर वर्किंग विद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, सो ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब आया मेन क्वेश्चन पे। ए से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है, ए से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, 2 टेंजेंट बनेंगे ए से। तो एक तो बना हुआ है ए बी, एक और बनाना है यहाँ पे कहीं। अब वो पॉइंट निकालना है मुझे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने कितने सीखे इसके अंदर? बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। एक ही बात सीखी है, जब हमें किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाना होता है तो उस पॉइंट से सेंटर को मिला देते हैं, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, राइट। तो बस वही काम हम यहाँ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ए से मिला देंगे सेंटर को। सेंटर क्या है? ओ नाम दे देते हैं सेंटर को, राइट। वेट स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ while. Yes, I am just using red pen now for your convenience. So A से C को मिलाएंगे भाई। आ रही है बात समझ? यस, ए से सी को मिलाएंगे तो पेंसिल से ही मिला दो, करेक्ट। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके, एक आर्क इधर लगेगा, एक आर्क इधर लगेगा, एक आर्क इधर लगेगा और एक आर्क इधर लगेगा, राइट। इसको मिला देंगे। यस, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स, राइट। क्या करते थे? ये मिल गया सेंटर। अब फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे, ए पे और सेंटर पे। फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे, ए पे और सेंटर पे बस। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ऐसे टेंजेंट बनाना है। बाकी क्या काम है भूल जाओ। इससे करेंगे काम। कैसे करा हमने? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस ए ओ लिखना चाहिए, ठीक। इससे सर्कल बनेगा।
यस, इससे सर्कल बनेगा, राइट। स्टूडेंट, ये पॉइंट जो आएगा ये आपका इस पे आएगा, ये थोड़ा सा कंपास शायद हिल गया, ये वाला पॉइंट जो है मिल जाएगा इस पे, ये वाला पॉइंट इस पे आएगा सर्कल का। जब आप बनाओगे तो आपका ठीक आ जाएगा बिल्कुल, शायद थोड़ा कंपास ही हिल गया होगा, नो प्रॉब्लम, ये पॉइंट यहाँ आएगा। बात समझ में आ गई। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक तो ये मिल गया जहाँ पे मैंने बताया था आपको टेंजेंट बना हुआ ये है, और एक ये मिल गया, बस इन दोनों को मिला दीजिए, ये बन गया आपका टेंजेंट। एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा, यस, टी। टेंजेंट हो गया आपका ए टी इक्वल टू ए बी, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड टेंजेंट। वर्क आपका कंप्लीट हो गया। बी सी कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। ए बी कितना था? 6 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट भी लिख दी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या होंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने वाला हूँ। देखिए कैसे, देखिए कैसे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए शॉर्ट में लिखूंगा बहुत ज़्यादा। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक ही बात में एक स्टेप खत्म। उसके बाद हमने क्या किया था? ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी से एक परपेंडिकुलर बनाया था ए सी पे, जो डी पे कट कर रहा था, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल such that it lie on B, C and D। एक सर्कल बनाया, इस तरह से बनाया जो बी सी डी पे लाई करे। उसके बाद बहुत सिंपल, जॉइन ए टू ओ। उसके बाद ए से ओ पे ज्वाइन करने के बाद क्या किया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ओ, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए ओ जो बनाया था वो किस पॉइंट पे हो रहा था? ये पॉइंट का नाम देना जरूरी है एम, क्योंकि इससे सर्कल बनेगा। ड्रॉ सर्कल with center O and radius, not O, center M and radius AM, right। उसके बाद ज्वाइन कर दो बस, ज्वाइन A to T and A to B। after that AT and AB are required tangents। स्टूडेंट्स मॉडिफाई आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि अगर आप 8 या यहाँ पे ना लेके 8 सेंटीमीटर यहाँ ना लेके और 6 सेंटीमीटर यहाँ ना लेके चेंज कर देते तो क्या होता। तो स्टूडेंट्स ये होता, ये देखिए, अगर मैं यहाँ 6 ले लेता, यहाँ 8 ले लेता, अब जब यहाँ से मैं सर्कल बनाता, कहाँ आता सर्कल? वो बाहर निकलता क्या? फंस जाते, दोबारा करना पड़ता काम, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया ये। और एक बात और मैंने भी कहा था आपसे वीडियो में कि अगर मैं यहाँ ट्रिक ये फॉलो ना करूँगा, अगर मैं ये ट्रिक फॉलो नहीं करूँगा तो क्या होगा?
तो ये में हौच पौच हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो कैसा दिखाई देगा अभी दिखाता हूँ, देखो मैं, देखिए स्टूडेंट्स, तो कुछ ये ऐसा दिखाई देता। हालांकि 3 अलग अलग कलर से बनाया गया है जिससे अच्छा समझ में आए, लेकिन ये आर्क एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, इसलिए ये लाइन बच गई हमारी। ऑल दो अच्छा लग रहा है ये भी, क्योंकि मैंने ही बनाया है स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो आप। 3 अलग अलग पेन से यूज़ किया है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन एंड पेंसिल, तब जाके ये अच्छा दिख रहा है, वरना अच्छा नहीं दिखता स्टूडेंट्स, राइट। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। आया समझ में भाई? तो ऐसे हम कर लेंगे। यहाँ पर लिख दो आप टेंजेंट ए टी इक्वल टू टेंजेंट ए बी। टेंजेंट लिखना चाहो टेंजेंट लिख दो यहाँ पे, टेंजेंट ए टी इक्वल टू टेंजेंट ए बी। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2 गाइस। ओके, ये रहा स्टेप्स, देख सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।